आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 28 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ 44 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸೂರತ್ ಮೂಲದ ಶೈಲೇಶ್ ಕಲಾತಿಯಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶೀತಲ್ ಹಾಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಿನಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವಂತಹ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ವೆಕೇಷನ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಮರಾಯ ಉಗ್ರರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರ ಮಗ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಆ ಉಗ್ರರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶೈಲೇಶ್ ಕಲಾತಿಯಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶೀತಲ್ ಕಲಾತಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತು. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡು ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತು. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಉಗ್ರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಉಗ್ರರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ರು. ಬಂದು ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದೂಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಅವರು ಕಲಾಮನ್ನು ಓದಿದ್ರು. ಆಗ 3 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಲಾಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅವರು 3 ಬಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಬೇರೆಯಾದರು. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗಂಡಸರನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಗಂಡಸರು ಹಾಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನರಳಿ ಸಾಯೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನು ಶೀತಲ್ ಅವರ ಪತಿ ಸಾಯುವಾಗ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಅವರ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಶೀತಲ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಮಕ್ಕಳು, ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆ ತಾಯಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 28 ಕುಟುಂಬಗಳದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕತೆ. हम 18 को निकले थे मॉर्निंग में जम्मू के लिए मुंबई से। वहाँ पे हमने 3 नाइट श्रीनगर में की। और ये पहलगाम के लिए हम जब निकले, सुबह निकले श्रीनगर से और दोपहर में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुँच गए। वहाँ पे गाड़ी पार्क किया और वहाँ से क्या पौनी लेके ही ऊपर जाना पड़ता है सबको। तो पौनी वोनी सब बंदोबस्त करवा के हम ऊपर गए। मतलब 2-2:30 बज गए हो गए ऊपर पहुँचे तब। फिर वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट किया। मतलब 5-10 मिनट हुए थे हम वहाँ पहुँचे ऊपर। और बच्चे को भूख लगी थी तो कुछ नाश्ता वास्ता करने बैठे, इतने में फायरिंग की आवाज़ आई। तो हमने सब तरफ देखा पर कुछ दिखा नहीं। तो हमने शॉप वाले से पूछा कि आवाज़ कैसी है? वो लोग भी डर गए कि मैडम पता नहीं, हमने भी आज पहली बार सुनी है। और इतनी देर में फिर से वापस वो फायरिंग की आवाज़ आई। तो सबको लगा कि नहीं कुछ तो गलत है। तो सब अपनी जान बचा के इधर उधर छिपने के लिए भागे, पर कहीं छिपने की जगह थी ही नहीं, क्योंकि पूरा तो बाउंड्री किया हुआ था। तो कहाँ कोई भागे, कहाँ कोई छिपे। और इतने में सडनली वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। जो हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे, हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी।
जैसे ही वो आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। तो ये जब ये लोग आए तो इन लोगों ने इनके हाथ में क्या क्या था, ये कैसे थे? जो मेरे सामने जो बंदा खड़ा था, मतलब पूरा इतनी लंबी हाइट थी और उसने ग्रीन कलर का पहना था पूरा, वो टॉप, वो पैजामा वगैरह पहनते हैं ना, वो कुर्ता और पैजामा, वो उसने पहना था। ऊपर वो जो नमाज पढ़ने के टाइम जो कैप पहनते हैं वैसी कैप पहनी थी। इतनी लंबी दाढ़ी थी, गोरा लंबा पतला था। और वो AK-47 क्या, वो लंबी वाली जो गन होती है 2 फुट लंबी, मतलब, और गन के आगे कैमरा था एक, तो ऐसे एकदम आसानी से शूट करके चलाया गया। तो उसने जो सबको गोली मारी सबके पास जा जाके मारी? हाँ, मतलब जैसे कि ये कैमरामैन यहाँ पे और हम इधर बैठे हैं छिपके, वो हमारे सामने था। हिंदू मुसलमान को अलग किया और जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। हम सब आसपास ही थे, ज्यादा दूर नहीं थे, सब मतलब एक टच में ही थे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब हम डर के नीचे बैठे थे कि हमें कोई लेना देना नहीं, किसी की जानहानि ना हो, इस डर से हम लोग सब नीचे बैठे थे। फिर भी उसने किसी को नहीं बख्शा। तो उसने देख लिया था कि आप लोग छुप गए? हाँ, नहीं, सभी छुपना मतलब ये जैसे कि बाउंड्री है, वो भी जाली ही थी, बाउंड्री में और कुछ था भी नहीं, वो नेट वाली जो बाउंड्री होती है वही थी। हाँ, फिर उसने जब आपके पति को गोली मारी फिर आगे क्या हुआ? उसने डायरेक्ट गोली मारी या फिर कुछ उनसे बात नहीं? नहीं, उसने किसी से बात नहीं, बात उसने इतनी ही की, हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। आपने कुछ उसे रोकने का प्रयास किया? नहीं, हम इतने डर गए थे, इतने सामने, हमारे एग्जिट सामने थे। हम इस डर से कुछ नहीं बोले कि ये लोग यहाँ से चले जाए तो कोई जान हानि ना हो, क्योंकि हमारे साथ हमारे 2 बच्चे, सबके साथ बच्चे थे छोटे, जो देखकर डर गए थे। हम उसको संभाले या इनको कुछ बोले, इससे बेटर है कि चुपचाप रहे, ये चले जाए तो फिर बाद में देख लेंगे, क्या जो भी हो, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मांगेंगे, किसी को इन्फॉर्म करेंगे। पर उसने कुछ मौका दिया ही नहीं, जैसे ही आया सामने बस हिंदू मुसलमान को अलग किया और शूट कर दिया और खड़ा रहा वहां पे जब तक ये लोग तड़प तड़प के मरे। तो ये जब उसने गोली मारी उसके बाद जैसा आपने बताया तो मुस्कुरा भी रहा था, हाँ वो देख रहा था, तो हाँ, कितने लोगों के मरने का वेट किया? हमारे साथ जो भी जेंट्स है, आई थिंक 6 to 7 थे ही, सबको उसने गोली मारी। और उसने इतनी नजदीक से गोली मारी ना, मतलब 2 से 3 मिनट में सब खत्म। हमारे सामने ही, जैसे कि मेरे हस्बैंड का सर मेरे गोद में था, मेरे पीछे मेरी बेटी, उसके पीछे मेरा बेटा, ऐसे हम बैठे थे। मैं भी कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। जो हिले उसको भी वो गोली मारने का बोला था, वो किसी को हिलना भी नहीं है। उसने महिलाओं को, बच्चों को? हाँ, नहीं मारा। बच्चे जो छोटे थे नहीं मारा, जो बड़े थे, यंग हुए, उसको मारा। और बाकी के ओल्ड एज है तो उसको भी मार दिया। फिर वो किस तरफ गया? वो कुछ पता, उसने सबको हेड डाउन का, मतलब सबके सर नीचे करके, तो मेरे 2 बच्चे थे, मेरे हस्बैंड के सर मेरे गोद में था, तो हम ऐसे करके छुप के बैठ गए थे नीचे देख के कि चाहे वो कुछ भी हमें कुछ ना करे। हम कश्मीर में पहलगाम में गए थे। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे। उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था, उधर हम गए थे। 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था, हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। आपके पिताजी से, पापा से क्या बात हो रही थी? वो आए तो क्या क्या उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? आतंकवादियों ने आपसे क्या पूछा, आपके पापा से क्या बात? किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। फिर आगे वो चले गए। बाद में सिविल लोगों ने बोला कि जो बच्चे हैं, जिंदा बच्चे हैं, वो जल्दी नीचे उतरो।
तो हम नीचे उतर गए। मैं तो घोड़े से आ रहा था, मैं तो घोड़े से नीचे उतरा और मेरी मम्मी और दीदी उतर के गई पहाड़। ये हुआ, हम नीचे पहुंचे, बाद में आर्मी सारी आ गई। बाद में मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। बाद में देखो, हमने वो मिलिट्री बेस थी उधर, जस्ट नीचे मिलिट्री बेस थे, हम उधर रुके थे थोड़ी देर। बाद में शाम को हम होटल में चले गए थे। आपके पापा को आतंकवादियों ने गोली मारी, उस वक्त क्या बात हुई थी? मम्मी ने क्या कहा, फिर क्या बात हुई? कुछ बात नहीं हुई, मतलब वो बोलने ही नहीं देते, अगर बोलेंगे कुछ तो गन से उड़ा देंगे हमारे में। मम्मी को उन्होंने कुछ कहा क्योंकि कौन कौन साथ में था उस वक्त वहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं कहा। वहाँ पर और कौन कौन लोग साथ में थे आपके साथ? टोटल तो 20-30 लोग थे, मतलब जेंट्स में, मतलब हिंदू 20-30। आपके तो उन्होंने उड़ा सामने दिया। पापा को गोली मारी? नो देखो, मैं, मम्मी मेरी, उसके आगे मेरे पापा, उसके आगे मेरी दीदी, और मैं 2 लोग के स्किप करके मैं था। जब पापा को गोली लगी मैं था ही, मतलब मुझे दिखा ही नहीं। और वो जगह कौन सी थी जहाँ हम बैठे थे? मिनी स्विट्जरलैंड, पहलगाम में। फिर आप लोग मिलिट्री कैंप में आ गए, फिर क्या हुआ? आतंकवादी कौन से कपड़े पहने थे, कैसे दिखे? मतलब एक गोरा सा था, दाढ़ी थी उसकी, ऊपर टोपी पहनी थी, वो मोमेडियन जैसी टोपी होती ना, उसकी ऊपर कैमरा था, और वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था। कैमरा कहाँ लगाया हुआ था? ऊपर जस्ट इसके इधर आगे। वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे? हाँ, वो पता नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि नहीं, कितने पर लोग थे वो लोग? हमें तो 2 दिखे थे, पर बाकी पता नहीं, 2 ही दिखे थे हमें तो। फिर वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, कैसे? कितने लोग थे वहाँ पर? सबको गोलियां मारी थी या फिर? सबको नहीं, लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मार दी थी, और बाद में हम भाग गए। तो फिर आर्मी कैंप से आपको कहाँ ले जाएंगे? होटल में मतलब होटल, मतलब आर्मी जो वो कौन सा था, पुलिस होता है ना, पुलिस स्टेशन, वो उधर वो रूम वाले रूम्स थे, उधर आए, पुलिस हेडक्वार्टर।